ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں بھائی کے لیے جو لڑکی بیاہ کر لاتی وہ شادی کے دوسرے دن ہی طلاق لے لیتی اور اماں کے ہاتھ میں ایک لیمو دے کر کہتی تو بہت پچھتائے گی۔ اس بار اماں گاؤں سے لڑکی بیاہ کر لائی جو لاوارث تھی۔ اس بار اس لڑکی نے بھائی کو نہیں چھوڑا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا جب ایک رات میں نے دیکھا بھابھی چھپ کر میری ماں کے کمرے میں جا رہی ہے اور کوئی چیز چھپا کر ماں کے کمبل میں رکھتی۔ میں بھابھی کے جاتے ہی کمرے میں گئی اور کمبل ہٹایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا نام تانیہ ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے اور ان کا انتقال اس وقت ہوا جب میں تیسری کلاس میں تھی۔ میں اس وقت بچی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں کہ میرے ابا کا انتقال کیسے ہوا تھا، لیکن لوگوں سے سنا تھا کہ میرے ابا بہت اچانک سے ایک پرسرار موت مرے تھے۔ میں نے کئی بار اماں سے جاننے کی کوشش بھی کی تھی کہ میرے ابا کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اماں ہر بات میری بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ وہ ابا کی موت کے ذکر سے ہی خوف زدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ جانے ایسی کون سی بات تھی جو میری ماں کو اس قدر ڈرا دیا کرتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے بھائی کا نام سلیم تھا اور وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا، لیکن ایسا تھا کہ مجھ سے 3 سال چھوٹا لگتا تھا۔ وہ جوان ہو چکا تھا لیکن سمجھدار کبھی بھی نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی عادتیں بہت عجیب سی اور بچوں والی تھیں۔ اماں بتاتی تھیں کہ ابا کی موت کے بعد سلیم بھائی صدمے میں چلے گئے تھے۔ شاید اب اسی وجہ سے وہ تھوڑی بچکانہ عادتوں کے مالک تھے۔ میرے ابا ایک پرائمری اسکول میں سرکاری ٹیچر تھے۔ صلح کی بندی ہی تنخواہ تھی اور ابا کی موت کے بعد لگی بندی سی پینشن تھی جس میں گزارا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے پاس گھر بھی ہمارا اپنا نہیں تھا، کرائے کے گھر پر رہتے تھے، اور پھر بجلی گیس کے بل، راشن اور اسکول کی فیسیں وغیرہ۔ تو اماں نے 1-2 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کھانے پکانے گھروں میں جایا کرتی تھیں اور میں اسکول سے واپسی پر اماں کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور پھر دونوں ساتھ رات کو گھر آتے تھے۔ سلیم بھائی اس وقت بورڈنگ میں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم گھر سے دور ہاسٹل میں رہ کر ہی پوری کی تھی، کیونکہ اماں کو سلیم بھائی کو لے کر عجیب سے ڈر اور وہمیں ہر وقت ستاتے رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے سلیم بھائی کو ہمیشہ گھر سے دور رکھا تھا۔ سلیم بھائی کی ہاسٹل رہ کے پڑھائی مہنگی پڑتی تھی، لیکن اماں نے یہ بھی برداشت کی تھی۔ ابا کی ساری پینشن ہر ماہ سلیم بھائی پر خرچ ہو جاتی تھی اور میں اور اماں کی کمائی پر گزارا کرتے تھے۔ اماں جن گھروں میں کھانا پکاتی تھی تو وہی سے ان کا بچا ہوا کھانا لے آیا کرتی تھی اور ہم وہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابا کی زندگی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن پھر جب اماں نے بھائی کو دوسرے شہر بورڈنگ اسکول میں ڈالا تو مجھے پرائیویٹ اسکول سے نکال کر ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا جہاں پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اماں کا سارا دھیان اور ساری توجہ صرف اور صرف بھائی پر تھی۔ میں تو کسی گنتی میں نہیں آتی تھی۔ اماں نے سلیم بھائی کی محبت میں مجھے پس سے پش ڈال دیا تھا۔ بھائی کبھی بھی ہم سے ملنے نہیں آتے تھے، بلکہ اماں انہیں گھر کبھی بھی نہیں آنے دیتی تھیں۔ مہینے بھر بعد اماں خود ہی بھائی سے ملنے چلی جایا کرتی تھیں۔ اماں چونکہ اپنے مالکوں کے گھر سے کھانا لا کر مجھے بھی کھلاتی تھیں اور خود بھی کھاتی تھیں، سو کھانے کے پیسے بچا کر جمع کیے ہوتے تھے اور جاتے ہوئے وہ بھائی کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے جایا کرتی تھیں اور مجھے پڑوسیوں کے گھر چھوڑ کر جایا کرتی تھیں۔ ہمارے پڑوسی بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ پڑوسن آنٹی مجھے 1-2 دنوں کے لیے اپنے گھر پر رکھ لیا کرتی تھی، تو صرف اس لیے کہ ان 2 دنوں میں وہ اپنے مہینے بھر کے رکے ہوئے کام مجھ سے کرواتی تھیں۔ مہینہ بھر وہ کام جمع کر کے رکھتی تھیں اور پھر ان 2 دنوں میں سب کام مجھ سے کرواتی تھیں، اور اس کے بدلے احسان کے طور پر 2 دن مجھے اپنے بچوں کا بچا کچا کھانا دیتی تھیں، اور وہ کھانا کھانے میں میں نخرے بھی نہیں دکھاتی تھی، کیونکہ اماں نے بچا کچا کھلانے کی عادت ڈال دی تھی مجھے۔ اماں کو ساری دنیا میں کسی کی فکر تھی تو وہ صرف سلیم بھائی تھے۔ اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے اماں صرف سلیم بھائی کو یاد کیا کرتی تھیں اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ انہیں دشمنوں سے دور رہنے کی دعا دیتی تھی اور میں سوچ کر رہ جاتی تھی کہ بھائی کا کوئی دشمن کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ میرے لیے اماں اور اماں کی تمام حرکات ایک مسٹری تھی اور اماں نے کبھی وہ مسٹری مجھے حل کرنے ہی نہیں دی تھی۔ میں کچھ بھی پوچھتی اماں جواب نہیں دیتی تھیں، یا وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی تھیں کہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ سکیں۔ ایک بات اور جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اماں جب بھی بھائی سے مل کر آتی تھیں وہ بہت پریشان رہا کرتی تھی اور ہر وقت بوکھلائی سی رہتی تھی، جیسے مجھ سے بلکہ سب سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میں نے بچپن کا پھاٹک پھلانگ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ عرصہ ہو گیا تھا میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ اماں کہتی تھی جب صحیح وقت آئے گا تو سلیم بھائی آ جائیں گے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں کے نزدیک وہ صحیح وقت کون سا ہے۔
لیکن یہ تھا کہ مجھے بھائی کی ضرورت تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی توجہ نہ ہو۔ اسے اپنے ماں جائے یا ماں جائے کی ضرورت رہتی ہے، اور میں تو ایک لڑکی تھی، گرد معاشرے میں پروان چڑھی ایک بے سائبان لڑکی تھی جسے بھائی جیسے سہارے کی ضرورت تھی، جو مجھے معاشرے کے ہر سرد و گرم اور گندی نظر سے بچا کر رکھے۔ لیکن اماں نے مجھ سے میرا سہارا چھین رکھا تھا۔ میں بھری دنیا میں اکیلی تھی، مجھے اسکول جانا ہوتا تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑتا تھا، اور راستے میں کئی لفنگوں کی سیٹیاں میرے کانوں میں گونجا کرتی تھیں، اور تب میرا دل چاہتا تھا کہ کاش سلیم بھائی میرے پاس ہوتے، میرے ساتھ ہوتے تو ان لفنگوں کی زبانیں تالوں سے چپکی رہتیں اور نگاہیں جھکی رہتیں۔ کوئی جو نگاہ غلطی سے اٹھ جاتی تو سلیم بھائی وہ آنکھ نکال کر رکھتے تھے۔ بھائی محافظ ہوتا ہے اور سلیم بھائی میرے محافظ تھے، لیکن جانے اماں نے میرے محافظ کو کہاں بیچ رکھا تھا، جہاں سے وہ ہمیں ملنے ہی آ نہیں سکتے تھے۔ میں جوان ہو چکی تھی اور بن باپ کے بھی تھی، تو آس پاس کے مرد مجھے یوں دیکھتے تھے جیسے میں مفت کا مال ہوں، اور تب میں اماں سے لڑتی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے سلیم بھائی کو واپس بلا لیں، دو عورتیں تن تنہا کب تک اس گرد دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جئیں گی، ہمیں کسی مرد کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ لیکن اماں ہمارے گھر کے اکلوتے مرد کو بلاتی نہیں تھی، اور یہ بات آس پاس کے مردوں کو اور شہ دیتی تھی۔ بظاہر نیک اور پرہیزگار نظر آنے والے محلے کے مرد ہمارے گھر پر ہر وقت نظریں گاڑے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ تو خدا کی مہربانی تھی کہ میں اور میری ماں ان سب کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے تھے۔ جب ابا کا انتقال ہوا تھا تو اماں بہت جوان تھی، اور تب محلے کا ہر مرد میری اماں کے ساتھ رہنے کا خواہاں تھا، اور اماں نے بتایا کہ تب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مرد شادی کرنا چاہے تو ان سے کر لے، لیکن اس وقت سب پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ وہ سب مرد شادی شدہ تھے، بس وہ اماں کے ساتھ دل بہلانا چاہتے تھے، جو میری اماں کو سخت ناپسند تھا۔ سو اس کے بعد بھی مرد لوگ باز نہیں آئے، اور اپنی خصلت سے مجبور پہلے اماں کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھتے تھے، اور پھر میرے جوان ہوتے ہی سب کی نظروں کا رخ میری طرف ہو گیا تھا۔ وہ مرد جو جوانی میں میری ماں کو گندا کرنا چاہتے تھے، اب بڑھاپے میں وہ مجھے گندی اور غلیظ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ زندگی ہم پر انتہائی تنگ کر دی تھی دنیا والوں نے، کیونکہ ہمارے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہیں تھا۔ میرے ابا کے خاندان میں بھی کوئی نہیں تھا ایسا جو ہماری کفالت نہ سہی ہماری حفاظت ہی کر لیتا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ کوئی ابا کا خونی رشتہ بھی اس دنیا میں موجود ہے، کیونکہ میں نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی ابا کے کسی رشتہ دار کو کسی عید یا تہوار پر ہمارے گھر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن پھر مجھے ایک دن پتا چلا کہ ابا کی ایک عدد خالہ بھی ہیں جن کا نام مسز شیردل ہے۔ مسز شیردل کا نام میں نے اخبارات وغیرہ میں دیکھ رکھا تھا، اور وہ کئی بار ہمارے اسکول کو فنڈ دینے بھی آئی تھیں۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ابا کی خالہ ہیں، اور نہ ہی کبھی اماں نے بتایا تھا۔ یہ تو مجھے ابا کی پرانی ڈائریاں پڑھنے کے بعد ابا کی خالہ اور ابا کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا پتہ چلا تھا۔ میرے ابا کے اماں ابا یعنی کہ میرے دادا دادی میرے ابا کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میرے دادا دادی نہایت غریب تھے اور اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے سوائے قرضے کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ابا یتیم ہوئے تو سوال اٹھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، اور تب دنیا کو دکھانے کے لیے میرے ابا کو ان کی کروڑ پتی خالہ اپنے گھر لے گئی تھیں۔ انسان جس قدر دولت کے ذخائر اکٹھے کر لیتا ہے اسی قدر لالچی اور کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے ابو کی خالہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ دولت نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ انہیں اپنی خونی رشتے بھی دکھائی نہیں پڑتے تھے۔ اسی دولت کے خمار میں انہوں نے اپنی سگی بہن کو بھی چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ بے انتہا دولت کا غرور انہیں غریب رشتہ داروں سے رشتہ رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر مجبوری میں ہی انہیں میرے ابا کی پرورش کی ذمہ داری لینی پڑی۔ جس وقت ابا کی خالہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھیں تب میرے ابا کی عمر صرف 10 سال تھی۔ ابا کی خالہ کے بچے بھی ابا کے ہم عمر ہی تھے، اور ان جیسی نہ سہی لیکن ابا ان کے ساتھ ہی پرورش پائی تھی۔ ابا کی خالہ کا گھر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ 300-400 لوگ وہاں آسانی سے رہائش اختیار کر سکتے تھے، لیکن اس اتنے بڑے گھر میں ابا کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھ لے جانے کے بعد ابا کی خالہ نے پہل ابا کو اپنے بنگلے میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رکھا اور اپنے بچوں جیسا ہی پہننے اوڑھنے اور کھانے کو دیا۔ اور پھر یہ بات ابا کی خالہ کی سوسائٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ مسز شیردل اس قدر رحم دل عورت ہیں کہ انہوں نے ایک یتیم اور مسکین بچے کو اپنے گھر لا کر ایک اچھی زندگی دی ہے۔ ہر طرف مسز شیردل کی واہ واہ ہونے لگی۔ کئی فلاحی ادارے انہیں بطور مہمان خصوصی اپنے پروگراموں میں بلانے لگے تھے۔
हर रोज़ बड़ी बड़ी तस्वीरें मिसेस शेरदिल की अखबारों में छपी हुई होती थीं और साथ उनकी शान में कसीदे पढ़े गए होते थे। इनकी रहमदिली को बयान किया गया होता था और इनकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए गए होते थे। इनकी फलाही सोच को खराज तहसीन पेश किया गया होता था। वो अपनी सोसाइटी में एक मशहूर शख्सियत बन चुकी थी। मिसेस शेरदिल ने मेरे अब्बा को अपने बच्चों के साथ ही उनके स्कूल में दाखिल करवा दिया था और इस अमल ने तो उनकी फलाही औरत होने पर मोहर लगा दी थी, क्योंकि स्कूल की माहाना फीस लाखों में होती थी और वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज हो जाते थे। सो मिसेस शेरदिल की वाहवाही हुई कि उन्होंने एक गरीब और यतीम व मस्कीन लड़के का मुस्तकबिल संवार दिया था, जो कि अमीर लोग होते हैं जिनके पास बेशुमार पैसा आ जाता है। वो बहुत मतलबी हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। किसी के दिल पर उनके अमल से क्या गुजरती है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। मिसेस शेरदिल भी यही किया करती थी। दुनिया के सामने वो मेरे अब्बा के साथ ऐसे पेश आती थी जैसे उन्हें अपने बच्चों से भी बढ़कर उनसे प्यार हो। और जब कैमरे हट जाते थे, लोग चले जाते थे, तो वो मेरे अब्बा को टॉर्चर करती थी। डायरी में एक जगह मेरे अब्बा ने मिसेस शेरदिल के बारे में लिखा था कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने स्कूल से शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ा और तब उन्हें लगा कि मिसेस शेरदिल एक साइको औरत थी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार थी। कभी उनके अंदर की अच्छी औरत बाहर निकल आती थी और बेहद लाड प्यार जताती थी, और कभी ऐसी वहशी औरत उनके वजूद में छा जाती थी कि देखकर किसी पागल औरत का सा गुमा होता था। मिसेस शेरदिल के अंदर की इन दोनों औरतों के ज़हूर पजीर होने का कुछ वक्त था। दिन की रोशनी में मिसेस शेरदिल के अंदर की रहमदिल और आला इखलाक वाली औरत सबके सामने होती थी और सारी दुनिया सिर्फ इसी मिसेस शेरदिल को जानती थी। लेकिन सिर्फ अब्बा थे जो दूसरी मिसेस शेरदिल को भी जानते थे, जो दिन की रोशनियां ढल जाने के बाद निकलती थी और वो बेवजह हर बात पर गुस्से से पागल होकर मेरे अब्बा को ताने तशने देती, उन्हें मेंटली टॉर्चर करती थी। थोड़े और बड़े होने पर पता चला कि ऐसे लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता था, जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। मिसेस शेरदिल, जो अपनी रहमदिली की वजह से काफ़ी मशहूर थीं और लोग उन्हें नेको परहेजगार औरत समझते थे, दरअसल वो एक मुनाफिक औरत थी। वो जो चेहरे दुनिया को दिखाती थी वो झूठा और नकली चेहरा था। उनका असली चेहरा सिर्फ मेरे अब्बा ने देख रखा था और वो था मुनाफिक चेहरा। अब्बा ने एक जगह लिखा था कि वो 10 साल की उम्र में शेरदिल हाउस गए थे और 22 साल की उम्र में वहाँ से निकले थे, लेकिन उन्होंने कभी रात का खाना और सुबह का नाश्ता नहीं किया था, बल्कि उन्हें दिया नहीं गया था। यानी कि 12 साल मेरे अब्बा ने सिर्फ एक वक्त यानी कि दिन का खाना खाया था, और वो भी दुनिया दिखावे के लिए। मिसेस शेरदिल ड्राइवर के हाथ अपने बच्चों के साथ उनके लिए भी लंच भेज दिया करती थी। मेरे अब्बा पर रात का खाना और सुबह का नाश्ता मिसेस शेरदिल ने सख्ती से बंद कर रखा था। एक दिन में लामहदूद खाना मिसेस शेरदिल के किचन में ज़ाया होता था, लेकिन किसी इंसान के बच्चे को दे देने का रवाज नहीं था। मेरे अब्बा ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया तो आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन मिसेस शेरदिल ने सख्ती से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो पराई औलाद पर मजीद अपना पैसा ज़ाया नहीं कर सकती, और वैसे भी घर पर एक यतीम बच्चे की परवरिश करने वाली रहमदिल औरत का किस्सा पुराना हो गया था। अब इस बारे में कोई भी नहीं पूछता था कि यतीम बच्चे के लिए मिसेस शेरदिल क्या कर रही हैं। इस किस्से से लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हुई तो मिसेस शेरदिल भी उकता गईं, और फिर अब्बा पर दिखावे के लिए जो थोड़ी बहुत मेहरबानी होती थी, अब्बा उससे भी रह गए थे। मिसेस शेरदिल ने अपने बच्चों को बड़े कॉलेजों में दाखिल करवा दिया और मेरे अब्बा को दाखिला लेने से मना कर दिया था। इतने सालों तक अब्बा की रिहाइश शेरदिल हाउस में ही थी, लेकिन फिर मिसेस शेरदिल ने सामान समेत अब्बा को उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया। अब्बा 18 साल के क्या हुए थे कि मिसेस शेरदिल ने तमाम जिम्मेदारियां उन पर डाल दी थी। मेरे अब्बा ने शेरदिल हाउस में ड्राइवरी से लेकर बावर्ची और चौकीदार तक की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन उन्हें फिर भी रात का खाना और सुबह का नाश्ता नहीं दिया गया। और अब्बा इस कदर ईमानदार थे कि कभी एक नवाला भी चोरी करके खाने की कोशिश न की थी। मिसेस शेरदिल हर घड़ी मेरे अब्बा को ये एहसास दिलाती रहती थी कि उन्होंने मेरे अब्बा पर बहुत एहसानात किए थे, और वो पूरे के पूरे उनके एहसानात में इस कदर डूबे हुए हैं कि कभी भी सर नहीं उठा सकते। 7 नस्लें भी मिसेस शेरदिल के एहसानात नहीं उतार सकती। लेकिन ऐसा तो नहीं था। मिसेस शेरदिल ने कोई एहसान नहीं किया था। उन्होंने जितना भी पैसा मेरे अब्बा पर लगाया था अपनी जेब से नहीं लगाया था, बल्कि लोगों की दी हुई चैरिटी से लगाया था। लेकिन मेरे अब्बा आला इखलाक के आदमी थे, खुद से बड़ों का अदब करते थे, सो चुपचाप इनकी हर बात मानते गए। और साथ साथ अब्बा ने प्राइवेट ही अपनी तालीम जारी रखी और FA पास कर लिया। मैट्रिक की तरह वो FA में बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सके थे, लेकिन B ग्रेड से पास हो ही गए थे।
اور اتनी जिम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ ये ग्रेड लेना भी बहुत बड़ी बात थी। अब्बा ने एफए के बाद बीए भी प्राइवेट ही कर लिया था और फिर जब प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर्स की भर्तियां होने लगीं तो अब्बा ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए अप्लाई कर दिया। अब्बा कोई इज्जत की नौकरी हासिल करने के बाद शेरदिल हाउस से हमेशा के लिए जाना चाहते थे और इस जिद्दत भरी जिंदगी से दूर अपनी एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते थे। और दूसरी तरफ मिसेस शेरदिल को इस चीज़ की भिनक भी पड़ जाती तो वो अब्बा की टांगें तड़वाकर उन्हें माजूरी की हालत में ही सर्वेंट क्वार्टर में मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन कभी भी जाने ना देती। उन्हें ये अपनी तौहीन लगती थी और वो कई बार अब्बा से कह चुकी थी कि शेरदिल हाउस से वो कभी नहीं जा सकते, लेकिन अब्बा को जाना था सो जाना था। इसलिए उन्होंने मिसेस शेरदिल की नज़रों से बचकर जो भी किया था सो किया था। अब्बा ने छुप छुपा कर ही अप्लाई किया था और फिर टेस्ट वगैरह भी दे दिए थे। और फिर जिस दिन अब्बा का बतौर गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर ऑर्डर आया था, अब्बा की खुशी की कोई इंतहा न थी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि अब्बा को कोहिस्तान के स्कूल में ज्वाइनिंग करनी थी। अब्बा को इस चीज़ से कोई मसला नहीं था क्योंकि कोहिस्तान में वो मिसेस शेरदिल की नज़रों और ज़राए से बहुत दूर थे। अब्बा ने मिसेस शेरदिल को शक हुए बगैर अपना ज़रूरी सामान समेटा और एक दिन सुबह की अजानों से भी पहले चुपके से शेरदिल हाउस से निकल गए थे। अब्बा वहाँ से सीधे कोहिस्तान चले गए थे। पीछे से मिसेस शेरदिल ने उन्हें ढूंढा, ये कैसे अपने गुस्से का इजहार किया अब्बा नहीं जानते थे। वो तो बस शेरदिल हाउस हमेशा के लिए छोड़ देने पर बेइंतहा खुश थे। कोई 2 साल तक अब्बा कोहिस्तान में टीचिंग करते रहे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो वापस अपने शहर आ गए जहाँ से वो भाग कर गए थे। लेकिन 2 साल का अरसा गुजर चुका था और इस अरसे में मिसेस शेरदिल शायद भूल भी चुकी थी कि ऐसा कोई कैदी उनकी कैद से भागा भी था। अब्बा ने वहीं फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की और किराए पर घर ले लिया और फिर मेरी अम्मा से शादी कर ली थी। अम्मा और अब्बा की शादी कब, कहाँ और कैसे हुई थी, अब्बा ने इस बारे में डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था और ना ही कभी अम्मा ने बताया था। अम्मा तो अपनी शादी और अब्बा की मौत का जिक्र करती थी और ना ही सुन सकती थी। कभी जो अब्बा की मौत का जिक्र होता तो अम्मा के चेहरे पर खौफ फैल जाता था। जाने कैसे मौत हुई थी अब्बा की कि अम्मा आज तक इस खौफ से बाहर नहीं निकल सकी थी। और जब अम्मा और अब्बा की शादी का जिक्र किया जाता तो अम्मा के चेहरे पर दुख की दास्तान पढ़ने को मिलती थी जो मेरा कलेजा काट कर रख देती थी। अम्मा का खौफ मुझे खौफ में मुब्तला करता था और अम्मा का दुख मुझे दुखी करता था। सो मैंने इन 2 चीज़ों का जिक्र करना ही छोड़ दिया था। हाँ, मैं माँ से जिद ज़रूर करती थी कि जल्द से जल्द वो सलीम भाई को वापस बुला लें ताकि सबको पता चले कि हम लावारिस नहीं हैं। एक मर्द का साथ हमें खुदा ने दिया था, लेकिन अम्मा मेरी सब बातों की तरह ये बात भी नहीं मानती थी, बल्कि वो तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और मुझे हर घड़ी भाई की कमी महसूस होती थी। मैंने सुना कि आसपास के लोग सलीम भाई के बारे में कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। मेरी तरह मोहल्ले वालों ने भी अरसा हुआ सलीम भाई को नहीं देखा था। मैं तो इंतज़ार में थी कि कभी न कभी तो सलीम भाई ज़रूर आएंगे, लेकिन मोहल्ले वालों के मुताबिक सलीम भाई मर चुके थे और कई एक बार कोई ना कोई आंटी मुझे कह चुकी थी कि तानिया, अपनी माँ का इलाज करवाओ, तुम्हारे बाप की पुरसरार मौत के बाद तुम्हारा भाई भी मर चुका है, बस तुम्हारी माँ पागल हो गई है जो हर महीने जाने की सलीम के पास पहुँच जाती है। मैं अपने मियाँ को बोलकर हॉस्टल से पता करवाया था, वहाँ मास्टर रहीम का बेटा सलीम नहीं पढ़ता और ना रहता है। ये कैसी पहेली थी, सलीम भाई थे या नहीं। जिंदगी इसी कश्मकश में गुजर रही थी और अम्मा हर महीने बाकायदगी से दूसरे शहर सलीम भाई को मिलने जाती थी। सवाल ये था कि अगर हॉस्टल में सलीम भाई थे ही नहीं तो अम्मा क्यों जाती थी और वापस आकर सलीम भाई के साथ गुजरे वक्त को बताती थी कि अम्मा वाकई सदमे से पागल हो रही थी। अम्मा को सारी जिंदगी मैंने उलझा हुआ ही पाया था और अब जब मुझे पता चला था कि सलीम भाई मर चुके हैं तो मुझे अम्मा पागल मालूम हुई थी। सलीम भाई की मौत का दुख था, लेकिन अम्मा के पागलपन का दुख ज्यादा था। मैंने अब सलीम भाई का इंतज़ार करना भी छोड़ दिया था कि भला मरे हुए लोग कब आते हैं, लेकिन अम्मा कहती थी बकवास करते हैं ये लोग, मेरा सलीम मरा नहीं है, मेरा सलीम जिंदा है। अरे मरे मेरे सलीम के दुश्मन, खुदा मेरी ज़िंदगी भी उसे दे दे और लोगों की ज़ुबानें काटते जो मेरे बेटे को मरा हुआ कहते हैं। मैं अब अम्मा को हौसला भी नहीं देती थी। जैसा था वैसे ही मैंने चलने दिया और इसी दौरान मेरा मैट्रिक हो गया था। मैंने अम्मा से कहा कि वो मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दें, लेकिन अम्मा ने हमेशा की तरह मुझे इनकार करते हुए कहा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आराम से घर बैठो। इतने पैसे नहीं मेरे पास जो तुम्हारे कॉलेज की फ़ीसें दे सकूं। पहले ही तुम्हारी पढ़ाई पर मेरा इतना खर्चा हो चुका है। और मैं अम्मा की बात पर हैरान परेशान सी उन्हें देखती रही कि मेरी पढ़ाई पर उन्होंने कौन से खर्चे किए थे। अब्बा की मौत के बाद उठाकर मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और वहाँ भी कभी भी अम्मा का 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ था। हुकूमत ने सरकारी स्कूल की लड़कियों के लिए वजीफ़ा मुख्तस कर रखा था जो हर 6 माह बाद मिलता था
और मैं इसी से अपने स्कूल की ज़रूरी चीज़ें लेती थी। खाना हमेशा अम्मा ने अपने मालकों का बचा हुआ मुझे खिलाया था और पहनी भी मैंने हमेशा उतरन ही थी। कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त अपने पुराने हुए कपड़े मुझे दे देती थी और इसी से मेरी ज़िंदगी गुजरी थी। ईद की ईद अम्मा के मालकों की बेटियां अपने पुराने सूट अम्मा को मेरे लिए दे दिया करती थी और इनके पुराने सूट भी कई नए सूटों से बेहतर हुआ करते थे। मेरी ईद भी उतरन पहनकर गुजरती थी तो अम्मा कौन से खर्चों की बात कर रही थी जो बकौल उन्होंने मुझ पर किए थे। अम्मा सारी की सारी रकम तो सलीम भाई को दे आती थी, जबकि सलीम भाई तो मर चुके थे। जाने अम्मा अपने पागलपन में मेरे अब्बा की पेंशन किसको दे आती थी। अम्मा ने मुझे कॉलेज में दाखिला न लेने दिया। मैं घर पर ही होती थी जब हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला था। मेरा पार्लर से कोई लेना देना नहीं था और ना ही कभी मैंने चेहरे पर कुछ करवाया था, बल्कि मैंने तो आज तक चेहरे पर कोई क्रीम भी नहीं लगाई थी और इसी का असर था कि मेरी जिल्द बहुत रफ थी और शक्ल बस वाजबी सी थी। पार्लर वाली आंटी का नाम कैसरा था और मैंने उनके बारे में सुना था कि वो काफ़ी अच्छी, खुश अखलाक और मिलनसार औरत हैं। इसीलिए मैं उनसे मिलने चली गई और जब उन्होंने सुना कि मैं फारिग हूँ और घर पर ही होती हूँ तो उन्होंने मुझे रोज़ाना पार्लर आने को कहा और मुझे बगैर फीस के सिखाने का वादा किया। मैंने अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा फ़ौरन से मान गईं। मुझे पता था वो मान जाएंगी क्योंकि कौन सा उनकी जेब से पैसे जा रहे थे। मैं बाकायदगी से पार्लर जाने लगी। मेरी फरागत के दिन ख़त्म हो गए थे और मैं तेज़ी से सीख कर माहिर होती जा रही थी। वक्त का काम है गुजरना, सो वक्त गुजरता चला गया और 2 साल बीत गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उम्मीदें तो कब की ख़त्म हो गई थी और ख्वाब मर चुके थे, लेकिन अचानक से इन मरे हुए ख्वाबों की ताबीर आ गई थी। 14 साल बाद सलीम भाई आ गए थे। लोग झूठे थे और माँ सच्ची निकली। सलीम भाई जिंदा थे और मैं उन्हें फ़ौरन पहचान गई थी। उनके गाल पर बड़ा सा तिल था जो उनकी शनाख्त था। ये तिल उन्हें अब्बा से मिला था। अब्बा के गाल पर भी बड़ा सा तिल हुआ करता था और अब तो सलीम भाई अब्बा की कॉपी लगते थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई थी और दौड़कर उनके गले जा लगी थी, लेकिन उन्होंने जिस अजनबियत का मुजाहरा किया था मैं रो ही पड़ी थी। अम्मा बेइंतहा खुश थीं। उनका बस नहीं चलता था कि वो सलीम भाई की राहों में फूल बिछा देती। सलीम भाई हमेशा के लिए हमारे पास वापस आ चुके थे और ये बहुत खुशी की बात थी। सलीम भाई का ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था और उनके आते ही अम्मा को उनकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। अम्मा रोज़ उनके लिए रिश्ता ढूंढने निकल जाया करती थीं। मुझे सलीम भाई थोड़े अजीब से लगे थे। कभी वो बहुत संजीदा होते थे और कभी वो एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगते थे। चलो जैसे भी थे, मेरे तो भाई थे और लौट आए थे। मैं इसी पर खुश थी। अम्मा ने बहुत छान फटक के बाद एक लड़की को सलीम भाई के लिए पसंद कर ही लिया था और फिर लड़की वालों के कहने पर नहायत सादगी से सलीम भाई की शादी हो गई थी। मैं खुश थी कि घर में भाभी आ गई हैं, लेकिन शादी के अगले ही रोज़ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिला कर रख दिया था। शादी के अगले ही दिन नई नवेली दुल्हन ने अपना सामान बांधा और अम्मा के हाथ में एक लीमू देकर कहने लगी, मैं खुला के कागजात भिजवा दूंगी या अपने बेटे से कहना शराफत से मुझे तलाक दे दे और तुम बुढ़िया एक दिन बहुत पछताओगी। वो कहकर जा चुकी थी और फिर उसने भाई से तलाक ले ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है और दूसरी तरफ अम्मा चुपचाप थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने भी सब सोचों को झटका और अपने काम में लग गई थी। मैं अपने काम में माहिर हो चुकी थी और अब कैसरा आंटी मुझे माहवार तनख्वाह भी देती थी। भाई की पहली तलाक को कोई 2 माह गुजरे थे कि अम्मा ने फिर से भाई की शादी करवा दी थी। मैंने दुआ की थी कि इस बार सब ठीक हो और अम्मा भी चाहती थी कि बस किसी तरह सलीम भाई का घर बस जाए, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। दुल्हन ने शादी के अगले रोज ही अपना सामान बांधा और अम्मा को एक लीमू पकड़ा कर कहा, तुम बहुत पछताओगी, और हमेशा के लिए चली गई थी। इसके बाद भी अम्मा ने 3-4 बार भाई की शादी करवाई, लेकिन हर लड़की शादी के अगले रोज ही तलाक ले लेती और अम्मा को लीमू पकड़ाकर पछताने की धमकी देती और चली जाया करती थी। और फिर अम्मा ने किसी ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी जो लावारिस हो और कहीं जा न सके, और यूँ उन्हें गांव की एक लावारिस लड़की मिल गई जिससे उन्होंने भाई की शादी करवा दी और इस बार सब कुछ ठीक रहा था और भाभी कहीं भी नहीं गई थी और भाई की शादी महीने भर से ज्यादा चल गई थी। नई भाभी ने भाई को नहीं छोड़ा था और अब मैं भी मुतमईन हो चुकी थी। सब कुछ ठीक जा रहा था जब एक रोज मैं रात को पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि भाभी अम्मा के कमरे की तरफ जा रही हैं। आधी रात को भाभी का अम्मा के कमरे में जाना मुझे समझ न आया तो मैं इनके पीछे गई और देखा कि भाभी ने अम्मा के कंबल में कोई चीज़ छुपाई थी और जल्दी से कमरे से चली गई। भाभी के जाने के बाद मैं अम्मा के कमरे में गई और कंबल हटाया तो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे सामने स्याह रंग का एक गुड्डा पड़ा था जिसमें लातादाद सुइयां थीं और दिल के मुकाम से खून बह रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे समझ न आई कि क्या करूं,
तो मैं फौरन से भागकर अपने कमरे में आ गई और अगले रोज अम्मा की चीखों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। मैं कमरे से बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर मैंने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि चारपाई पर सलीम भाई मुर्दा हालत में पड़े थे और पास बैठी अम्मा रो रही थी, जबकि भाभी भी झूठे टसवे बहा रही थी। मेरे सामने रात वाला मंजर घूमा तो मैं समझ गई कि भाई की मौत के पीछे भाभी का हाथ है। रात गुड्डे के दिल के मुकाम से खून आ रहा था और भाई को हार्ट अटैक हुआ था। भाई को दफना दिया गया। अम्मा की हालत खराब थी और भाभी अपना कमरा बंद करके बैठी थी। मैंने कैसरा आंटी से मशवरा किया और पुलिस को बुलवा लिया, क्योंकि मैं जानती थी भाभी ने भाई पर काला जादू किया था और भाभी के कमरे से सबूत जरूर मिलेंगे। जब पुलिस आई और भाभी के कमरे की तलाशी ली तो काले जादू के तमाम लवाजमात भाभी के कमरे से मिले थे। पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार कर लिया था और फिर रिमांड के बाद भाभी ने जो बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। भाभी लाहौर के एक बंगाली खानदान से थी जो काले जादू में माहिर थे और मेरी अम्मा भाभी की सगी पुफी थी। जब मेरे अब्बा मिसेस शेरदिल के घर से भाग गए तो उन्हें ये अपनी तौहीन महसूस हुई और तब उन्होंने बंगाली खानदान की तरफ रुख किया, जहाँ उनका केस मेरी अम्मा को सौंपा गया था। मेरी अम्मा एक रात सड़क पर अब्बा को बेहोश मिली और फिर अम्मा ने बेचारगी का इतना रोना रोया कि अब्बा ने उनसे शादी कर ली और शादी के बाद सही काला जादू अम्मा ने शुरू किया। मिसेस शेरदिल के कहने पर अम्मा ने मेरे अब्बा को दर्दनाक और पुरसरार मौत दी थी, जिसका कोई भी सुराग नहीं लगा सका था। अम्मा ने शादी के बाद 11 साल तक अब्बा पर जादू करना जारी रखा, जिसने धीरे धीरे अब्बा को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। अब्बा की मौत के बाद अम्मा खुश थीं, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अम्मा के बंगाली ख़ानदान को कुर्बानी चाहिए थी, और वो भी सलीम भाई की। क्योंकि अम्मा ने अब्बा पर जब जादू शुरू किया था तो इस वक्त सलीम भाई अम्मा के पेट में थे। अम्मा को सलीम भाई से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जादू का असर सलीम भाई पर था कि वो दोहरी शख्सियत के मालिक थे। अम्मा ने सलीम भाई को अपने ख़ानदान से बचाने के लिए दूसरे शहर भेज दिया और स्कूल और हॉस्टल में सलीम भाई का नाम भी बदलवा लिया ताकि कोई इन तक पहुंच न सके। और जब सलीम भाई वापस आए तो अम्मा को लगा कि उनका ख़ानदान सब भूल चुका होगा, लेकिन वो लोग याद रखे हुए थे। और जब भी सलीम भाई की शादी होती थी तो नई दुल्हन को एक तो भाई की दोहरी शख्सियत डरा दिया करती थी और दूसरा काले जादू के असर कमरे से खौफ में मुब्तला कर देते थे, और वो जान जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अम्मा अपने बेटे की शादी झटपट करवा देती थी। लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थीं, सो वो चली जाती थीं, और जाते हुए वो अम्मा को लीमू पकड़ा जाती थी, जिसकी बरसात सारी रात कमरे में होती थी और सुबह बस एक लीमू होता था। सच्चाई इतनी तलख थी कि सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और तब मुझ पर और सच्चाई उतरी कि मैं अम्मा अब्बा की ले पालक बेटी थी। अब्बा को मैं एक रोज़ कचरे के ढेर से मिली थी और वो बेटी बनाकर घर ले आए थे मुझे। अम्मा का रवैया मैं अब समझ गई थी। मैं उनकी बेटी नहीं थी तो वो क्यों कर मुझ पर तवज्जो देती। भाभी के बयान के बाद उनके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भाई की मौत के बाद अम्मा पागल हो गई थी। जिस बेटे को बचाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था वो फिर भी मारा गया था। डॉक्टर के कहने पर मैंने अम्मा को स्लाइलम में दाखिल करवा दिया और खुद अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैंने और कसरा आंटी ने मिलकर अपने पॉलर को बहुत तरक्की दी, और फिर कसरा आंटी ने मेरी शादी अपने बेटे नुमान से करवा दी, जो बहुत सुलझा हुआ लड़का था और बैंक में काम करता था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था। बुरे लोगों ने अपने किए की सज़ा पा ली थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।